Good morning, everyone. We heartily welcomes our colleagues, beloved teachers, and non-teaching staff. As you all know, we are here to celebrate our country's 72nd Republic Day. So it was 72 years ago when our country finally became a republic. It was 72 years ago when we finally said to the whole the world that it is our country and we will have our own rules. Now, I'd like to request Rahul Gupte to escort Dr. Khanna sir and Dr. Anvin Manha sir to our chief guests for the day. So, in the meanwhile, while Rahul is away, I'd like to share some status I saw in the morning. तिरंगा रखना है तो अपने दिल में रखिए, तिरंगा रखना है तो अपने दिल में रखिए, स्टेटस में नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि अगले दिन आपका स्टेटस तो बदल देंगे, पर ये देश हमेशा आपके साथ रहेगा. Thank you, Rahul, and welcome. Republic Day. This is the day to commemorate the date on which the world's lengthiest constitution, yes, the Indian Constitution came into effect in 1950. We got independent on 15th August of 1947. But it was 26 January 1950 when we finally got our constitution into effect. Hence each year we celebrate this forming of our constitution by holding parades and honoring the tricolor, the symbol of our Swaraj, our self-reliance. I'd like to share a शायरी on the tricolor. शान देश की, मान देश का ये जान है, तीन रंगों से रंगा तिरंगा ये, अपनी ये पहचान है. So without further delay, with freedom in our mind, faith in our words, pride in our heart, and memories in our souls, let us begin with today's festivities. We will begin our activities with Bharat Mata photo pujan. So I request Dr. Sweety ma'am to pray Bharat Mata.
I advise everyone to please maintain silence. Thank you very much, Sweetie ma'am. Now for the main event, I'd like everyone to stand up for the flag ceremony. I request Rahul to escort Dr. Kharat sir for a flag hosting and Dr. Maharaj sir also. Now remember, all will salute the flag together only after Rahul gives command. Okay? Parade Saudhan! Parade Vishram! Parade Saudhan! माननीय अतिथि, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ ध्वजारोहण समारोह के लिए। हेलो उभारो 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 એ તો બોલવું પડશે પછી ચાલુ કરવાનું બોલશે પછી ચાલુ કરવાનું જન ગણ મન બોલ્યા પછી ચાલુ Parade salute! I request Dr. City Man and team for the national anthem song. We all sing together. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा
जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 परेड विश्राम, परेड सावधान, परेड विश्राम। आप बैठ सकते हैं। The rest of the program will be hosted by Bhumika. Thank you so much, Faizan and Surpal. Hello. A very pleasant good morning to all of you. As you know that we gathered over here to celebrate 72nd Republic Day. We both wishing you all a very happy Republic Day. Today is the day when everyone must come together to show the whole world that this nation is the best nation under sun. So let's celebrate together. Now, I cordially welcome our most respected Principal Sir, Dr. Khanna Sir, to further proceed the program with some precious words. Please come, sir. भारत माता की वंदे। A very good morning. I am feeling very happy today. The future of the India. सुबह सुबह जल्दी उठ के इधर आ गई। So, on the occasion of 72nd Republic Day, we all gathered here. You all know, in the different state of the India, different festivals are celebrated. In Maharashtra, Deepavali, here Sankranti, in Tamil Nadu or in Telangana, Ugadi is there. The different period is also there. But this is one festival which is celebrated throughout India on this particular day, and in a particular fixed time, you can say from 7 to 10. Lot of activities are conducted on this particular day in schools. Some sports are arranged or activities are arranged, some spardha vagare etc. So day by day we will also start some of the activities here. But on border in -5 you can say, the soldiers are celebrating their day. Their जो कर्तव्य बोलते हैं वो लोग कर रहे हैं, लेकिन अपन को क्या करना है? कम से कम as a contribution to the India's evolution, we all should first thing सबको discipline लाना है खुद में. Now we all are related with a profession that is medical profession.
तो मेडिकल प्रोफेशन में हम लोग सब लोगों की जो सेवा कर रहे हैं वो भी एक कंट्रीब्यूशन ही है। सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखना वो भी एक कंट्रीब्यूशन ही है। तो अपनी जिम्मेदारी खुद समझ के उसको पालन करना या उसको निभाना, यही कंट्रीब्यूशन है। सो ऑन दिस ओकेजन I would like to say best wishes to all of you for your future and thank you. Thank you so much, sir, for your valuable words. We are blessed to heard you. Thank you. After listening such a valuable words from Dr. Khanat sir, we would like to add some precious words from Dr. Manhaj sir from BPT to inspire us. Please come, sir. Worthy Khanat sir, respected teaching and non-teaching staff, and dear sweet conjures. 26 जनवरी के दिन बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है कि 26 जनवरी की अहमियत क्या है हमारे लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए। और फिर भी हम लोग भूल जाते हैं। सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमें देशभक्ति याद आती है। ऐसा क्यों? ये सवाल आपको खुद से करना है। आज के दिन ही क्यों हम अपने झंडे को सैल्यूट करते हैं, हर रोज क्यों नहीं? 26 जनवरी का दिन बहुत मुश्किल से मिला है, चाहे वो भगत सिंह हो, खुदीराम बोस हो या दूसरे हमारे फ्रीडम फाइटर्स हो। आज के दिन भी हमारे जवान तपती गर्मी में और ठंडी में बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, फिर चाहे आंधी आए तूफान आए। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये झंडा आज यहाँ पे लगा हुआ है, शाम को या तो कचरे के डिब्बे में पड़ा होगा या रोड्स पे पड़ा होगा। अगर किसी को ये दिखे तो प्लीज उसको उठा के उसकी जगह पे रखिए, या तो उसको इस्तेमाल ही मत कीजिए। बहुत सारे लोग आज इसको गाड़ियों के आगे रखेंगे, अपने ऑफिस में रखेंगे, कल सफाई होगी ऑफिस से, कचरे के डिब्बे में चला जाएगा। अगर आप इस तिरंगे की इज्जत करते हो तो बेटर है, अगर इसको संभाल सकते हो तो ही इसको पहनो, अदरवाइज इसको मत पहनिए। जय हिंद। Thank you so much, sir, for a great words. Thank you so much. अनेकता में एकता इस देश की शान है, इसीलिए मेरा भारत महान है। I hope you all enjoyed this speech. So after so much delightful words, let us stir up love and respect of the country through this song. So I would like to request to the persons, without them we can't imagine functions of our college. Dr. Keyur sir and Dr. Ansari sir for encouraging us or gives us a feeling to cherish for your motherland and feel proud to be by patriotic song. શરૂઆત જે કરું છું એમાં એક ડાયલોગ છે, શાંતિથી ધ્યાનથી સાંભળજો। એક મૂવીનો ડાયલોગ છે, એ શાંતિથી સાંભળજો, પછીથી એ સોંગ છે એ પ્રેઝન્ટ કરવા આવશે, બધા રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવવા આવશે। વેઇટ 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 વેઇટ, હું કહું એટલે આવજો। અંસાઈ સર, તમારી એન્ટ્રી લાસ્ટમાં, બાલા એન્ટ્રી લાસ્ટમાં। अच्छा है। और चाचा जी, आपने तो कहा था कि ये क्लब अपने देश वालों का है, अपनापन तो यहाँ दिखाई नहीं दिया। माय गॉड, इंडियंस को अपनापन वहीं दिखाई देता है जहाँ मुरझाए हुए चेहरे और खाली पेट जी। और नहीं तो क्या, यहाँ देखो हर आदमी खुशहाल नजर आता है, न रोटी की फिक्र, न कपड़े का गम और न घूंघट का झगड़ा। और एक तुम्हारा देश है मिस्टर, 4 रोटी में से 1 रोटी कर्जे की खाता है तुम्हारा देश। वो देश आपका भी तो है। गाली मत दो जी। जो देश दूसरों के रहम और करम पर पल रहा हो वो देश मेरा नहीं। मेरा तो है। होगा। तुम उसे अपना समझते हो जो मदद लेता है, मैं उसे अपना कहता हूँ जो मदद देता है।
तुम लोग जमीन से पेट भर अनाज नहीं निकाल सकते और लोग चांद तक पहुंच गए। है कोई मुकाबला? जो चांद पे पहुंचे उनके सामने दुनिया ने सर झुकाया है। सर झुकाने पर फख्र करते हो। है कोई ऐसी बात तुम्हारे देश की जिस पर के सर ऊंचा कर सको? नहीं माय डियर बॉय, तुम्हारे देश ने कुछ नहीं दिया। India's contribution is 0, 0 and 0. जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। दिखाना दशमलव भारत दो चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सब जहाँ पहले आई पहले जन्मी है जहाँ कला अपना भारत जिस किसी से संसार चला भगवान करे हर बड़े बड़े बढ़तासी रहे बढ़तासी रहे खुश भरे। क्यों हो गए? और सुनाओ। એક મિનિટ ડિસ્ટર્બન્સ આવી ગયું છે, લેપટોપ પડી ગયું છે અને લેપટોપ તૂટી ગયું છે. ઓકે ચલો આપણો પ્રોગ્રામ ચાલુ રહેશે. વચ્ચે અહીં ગાડે કટ ઓફ કરે છે. આ લેપટોપ તૂટી ગયું છે એટલે સોરી ફોર ડિસ્ટર્બન્સ. Thank you so much, sir. Whatever you perform, it's okay. It is an accidentally. So now further proceed the program. The celebration of Republic Day is going to be a bit different from the past due to the corona pandemic. But let us leave the 2020 and strive to take India to new heights in this 2021. जो रंग बिरंगी संस्कृति का अनूठा जहान है, रंगी हुई जिसमें धरा निखरा आसमान है, जग में निराली शान अलग ही पहचान है, वो मेरा हिंदुस्तान है, वो मेरा हिंदुस्तान है. On this pleasant occasion, I would like to call Dr. Rosby Ma'am for giving some adorable words on this Republic Day. I would like to call Dr. Ansari sir for adorable word on this occasion. Good morning to everyone. Happy Republic Day. भारत माता की, भारत माता की.
वंदे वंदे। Respected Vice President of Shri Shamraji Arogya Seva Trust, Dr. Vishal Soni sir, because of some reason वो आज अटेंड नहीं कर सके। और रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल श्री शामराजी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज डॉक्टर खनाज सर एंड वेल नोन पर्सन थ्रू आउट द इंडिया डॉक्टर खनाज सर, ऑथर ऑफ रिपर्टरी बुक डॉक्टर खनाज सर, एंड अभी नए नए बने प्रिंसिपल हमारे दोस्त डॉक्टर अरविंद मनहाज सर। आपको बहुत बहुत मुबारक हो सर नई पोस्ट। आशा रखते हैं कि आईएनआर सर के जैसा या जहां तक के आईएनआर सर ने लेकर गए हैं फिजियोथेरेपी कॉलेज को, तो उसके आगे आप भी लेकर जाए। और मेरे दोस्त हमारे कलीग्स टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ और हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, जैसे ल्यूकोसाइट्स कम हो जाता है तो ल्यूकोपीनिया बोलते हैं, केवल सर ने आपको सिखाया होगा, किंजल मैडम ने। तो वैसे ही हमारे स्टूडेंट को लॉकडाउन में लेक्चरोरीमिया हो गया था कि वो कब लेक्चर अटेंड करें, लेक्चर अटेंड करने की कमी हो गई थी। अब भरपाई हो गई ना, चालू हो गया ना लेक्चर, अभी हम रूटीन पे आ गए हैं ना। अभी कुछ दिनों में ये मास्क भी गायब हो जाएगा और हम फुल फ्लैश में दिखने लगेंगे। तो दोस्तों आप सबको बहुत बहुत आज के रिपब्लिक डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। 1950 में हमारा ये प्रजासत्ताक दिवस, गणतंत्र दिवस और उर्दू में यौम जमहूरिया दिन कहते हैं उसको, वो लागू हुआ और बहुत सारे कानून कायदे बने जे। लेकिन उसी दिन, हाँ मैं थोड़ा बहुत बाद में भी बोलूंगा, लेकिन उस दिन से सब कानून कायदे जो है लागू हुए और आज तक चलते आए और धीरे धीरे जो हम लोग पूरी दुनिया में छा गए। छा गए यानी हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि अभी हिंदुस्तान का डंका पूरे विश्व में बजने लगा। बज रहे कि नहीं बज रहे दोस्तों? दोनों हाथ हाथ के बोलो, बज रहा है कि नहीं बज रहा है? वाह वाह, किसको सुने आया भाई? ये डंका किसी को सुने आया? हम सब सुनते हैं कि भाई पूरी दुनिया में हमारा डंका बज रहा है, लेकिन कहाँ बजा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बजता जरूर है, समझे? तो इसलिए एक छोटी सी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये थोड़ा सा मैं आपको सुनाना चाहूंगा, लेकिन तरन्नुम में नहीं, सिर्फ शब्दों में। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। गुर्बत में अगर हम, गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वही है दिल यूं सारा, समझो वही है हम भी, दिल हो। एक और अच्छी लाइन है इसमें, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। आपस में बैर रखना नहीं, आपस में दुश्मनी रखना। हिंदू की मुसलमान के साथ, मुसलमान की सिख के साथ, सिख के साथ सिख की ईसाई के साथ, चारों की। तो ये किसी का भी मजहब नहीं सिखाता कि आपस में दुश्मनी रखना चाहिए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। और एक बहुत अच्छी लाइन है दोस्तों, यूनान और मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से। अभी किसी को याद नहीं है यूनान कहां पर है, मिस्र कहां पर है, रोम कहां पर है। यूनान, वो मिस्र और रोम मिट गए जहां से, अब तक मगर है नामो निशान हमारा। अभी भी सारी दुनिया में हमारा नाम बाकी है। तो दोस्तों ये तो बहुत सारी हमारी खूबियां हैं जो पूरे वर्ल्ड में जो है मानी जाती है कि यहाँ पर, अभी एक स्टूडेंट ने बोला कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे रंग हैं, लेकिन हम सब एक है। जो हमारे बहुत सारे रंग हैं, यानी कि जो हमारे मजहब के रंग हैं।
फिर भी हम एक साथ मिलजुल कर रहते। लेकिन दोस्तों कुछ काम हमारे हिंदुस्तान में ऐसे हुए हैं जिन्होंने हम लोगों का एक बहुत बड़ा मजाक बना दिया है। ये बंधारण दिवस का जो है ये एक मजाक बना दिया है। कुछ सालों के बाद तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रजासत्ताक दिवस ये बनाया जाएगा, क्योंकि नए नए कानून कायदे बन रहे हैं। जैसे 2015 में सबसे पहले तो एक नोट बंद हो गया, क्योंकि बोले आतंकवाद खत्म हो जाएगा। नोट बंद होने के बाद हमारे हिंदुस्तान में पुलवामा हमला हुआ। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा नोट बंद होने से आतंक टेररिस्ट का क्या लेना देना है। फिर एक बहुत नारा लगा, बहुत जोर शोर से नारा लगा, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। 2014 का इलेक्शन हुआ, 2020 में इलेक्शन हुआ, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं कि अच्छे दिन कब आएंगे। फिर उसके बाद सबको अपने अपने अकाउंट में 15 लाख मिलने वाले। कितने लाख मिलने वाले? अगर आप लोगों का अकाउंट होगा तो आपका BHMS की फीस भी होगी और आप MD डबल MD कर लोगे। लेकिन अभी तक नहीं आया, क्योंकि बोले वो काला धन है। नोटबंदी किया तो बोले हमने काला धन खत्म किया। हम लोगों ने, हमारे जैसे लोगों ने हमारे बच्चों की शादियों के लिए, हमारी लड़कियों को जहेज दान देने के लिए, बेचारे मेरे जैसे कितने लोगों ने अपना रुपया पैसा जमा करके रखा था, उसको अकाउंट में डालना पड़ा और उसको जो है अपडेट करना पड़ा। बहुत सारी तकलीफें हुई जो है दोस्तों। फिर उसके बाद नया नारा लगा जो है सबका साथ सबका विकास। ये कुछ हद तक के ये प्रैक्टिकल हुआ है, सबका साथ सबका विकास। इसमें कुछ ज्यादा निगेटिव बोलने की जरूरत नहीं है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बहुत सारे लोग जो है कितना करप्शन हुआ, जो करप्शन कर रहे हैं देश छोड़ रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं देश छोड़ रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी अपने हिंदुस्तान की जो सरकारी फैक्ट्रियां हैं वो बंद हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट बिक गए, BSNL बिक गया। अभी यहाँ का जो BSNL है वहाँ को BSNL छोड़ के कुछ नया बोर्ड लग गया, कोई तो भी पंचायत समिति हो गई जो ऐसा। साल भर में 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। साल भर में कितनी? 2 करोड़। 7 साल हो गए, इसका मतलब 7 दूनी 14 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए। लेकिन अभी ये हाल है कि सरकारी नौकरियां भी प्राइवेट में चेंज हो रही है। बहुत सारे लोग जो है सरकारी नौकरियों से भी अपना हाथ धो रहे हैं। फिर एक और नारा लगा, मुझे प्रधानमंत्री बना दो। मुझे 15 मंत्री मत बनाओ, बल्कि मुझे चौकीदार बनाओ। क्या बनाओ? चौकीदार बनाओ। फिर और एक बहुत जोर शोर से नारा लगा दोस्तों कि 2019 तक देश के 100 शहर स्मार्ट सिटी बन जाएंगे, और जिसमें से हमारे सबसे नजदीक का स्मार्ट सिटी दाहोद। हमारे बहुत सारे दाहोद के रहने वाले हैं हमारे स्टूडेंट। अब वो कितना स्मार्ट सिटी बन गया दोस्तों वो जानते हैं। 2022 तक सबके लिए अपना घर हो जाएगा। ये भी रिसेंट अनाउंसमेंट है, एक 8-15 दिन पहले। 2022 तक अपना सबका अपना घर हो जाएगा। मैं तो अभी तक भाड़े के घर में रहता हूँ, तो जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले कंप्लीशन के टाइम पे हम मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा मेरा घर होगा कि नहीं होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट नारा लगा दोस्तों जो है, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई। अभी देखो ये कितनी महंगाई हो गई है, कितनी महंगाई, हर चीज के अंदर महंगाई। ये नारा 2013 में लगता था, 2013 में, 2014 के इलेक्शन से पहले अब बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। प्याज सबसे कॉमन चीज,
आलू इतना महंगा हो गया है। पहले 20 रुपया किलो मिलता था, अभी 40-35 रुपया किलो। प्याज जो है 7 रुपया, 10 रुपया, 2 रुपया किलो मिलने वाली चीज जो है 50 रुपया किलो। कल ही 2 किलो लाया मैंने, 50 रुपया किलो के हिसाब से कल ही लाया। मैडम का फोन आया, आते आते 2 किलो प्याज लाया। दोस्तों, ये मैं किसी सरकार की बुराइयां या किसी पर्सन की बुराइयां नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी हमारे रेस्पेक्टेड खनाज सर ने बोला कि मेरे सामने मेरा फ्यूचर का इंडिया बैठा है। तो ये सब वादे अगर करना तो पूरा करना। अगर आप में से कोई पॉलिटिक्स में जाता है, फ्यूचर इंडिया में आता है और इंडिया को चलाता है, तो ये सब चीजों पे ध्यान रखना। महंगाई बहुत हो गई है। पेट्रोल का दाम वो जमाने में 60 रुपया 50 रुपया लीटर हुआ करता था। हम लोग सोचते थे इतना महंगा पेट्रोल है और हमको 2 लीटर भरना है तो 100-150 रुपये लगेगा। अभी 80-85 रुपया लीटर पेट्रोल है। कोई गरीब से जाके पूछो कि वो सुबह में भूखा उठता है तो भूखा सोता है या खाना खा के सोता है या नहीं सोता है। तो ये सब नारे दोस्तों, ये बहुत दिल को छू लेने वाले नारे हैं, लेकिन इसके ऊपर काम होना चाहिए जो। और भी बहुत सारे नारे हैं। देश से भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, देश की छवि विश्व में सुधार देंगे। विश्व में हमारी छवि सुधारने से पहले हमारे घर के अंदर की छवि को सुधारो। हमारे लोगों को कपड़ा दो, हमारे लोगों को मकान दो, हमारे लोगों की भूख मिटाओ जो है, हमारे लोगों को रोजी दो जो है, हमारे लोगों को काम दो जो है। नोटबंदी के बाद से दोस्तों छोटी छोटी फैक्ट्रियां इतनी बंद हो गई है, इतना लॉस है, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं है ये, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन। लोग अपने बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि पैसा ही नहीं है। हम खाएंगे क्या क्या करेंगे, फिर बच्चों को कैसे एजुकेशन करेंगे दोस्तों। तो ये बहुत सारे अभी नए नए बंधारण जो है बन जा रहे हैं, नए नए बंधारण बना रहे हैं। CAA एक नया कानून कायदा लाया, फिर एक नया कानून कायदा लाया मुसलमानों की औरतों को लुभाने के लिए 3 तलाक का कानून लाया। अभी एक नया प्रॉब्लम चालू है पूरे देश में जो है, 1-1.5 महीने से किसानों का मसला, किसानों का कानून जो है वो। तो ये कानून कायदे क्यों लाते हो मेरे भाई बाप। ये तो 1950 में जो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बना दिया जो है। उसको ऊपर सिर्फ जो है काम करो, लोगों को खुश रखने का काम करो और लोगों को जो है अच्छा रखने का काम करो, यही सबसे अच्छे दिन है। तो इसलिए अभी इतना सारा कहा, तो इसके ऊपर जो एक शायरी भी आती है कि अगर कोई इनके खिलाफ अगर कोई कुछ आवाज भी उठाता है दोस्तों, तो एंटी नेशनल एक्ट लगा दिया जाता है, अंदर डाल दिया जाता है। तो दोस्तों अभी तो ये हाल हो गया है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। अभी तो यह हाल हो गया है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। दोस्तों आखिर में एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे देश के अलग अलग रंग हैं, लेकिन हम एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक है। चाहे गीता बाँचिए, चाहे पढ़िए कुरान, चाहे गीता बाँचिए, चाहे पढ़िए कुरान। हाँ याद आया, चाहे गीता बाँचिए या पढ़िए कुरान, तेरा मेरा प्यार है, यानी हिंदू और मुसलमान का प्यार है। हर पुस्तक का ज्ञान, हर पुस्तक का ज्ञान। थैंक यू वेरी मच। वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे। Thank you, sir. Thank God laptop is repaired. So I would like to request Dr. Keyur sir for remaining song. Hello.
जहांगीरी सदा, है प्रीत जहांगीरी सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहांगीरी सदा। ताले बाड़ो, हाँ बस शूटिंग में हर दिन से हमारा नाता है, कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, वो जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहांगीरी सदा। सबको समझो, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। यहाँ राम अभी तक है घर में, नारी में अभी तक सीता है। पावन है लोग जहाँ, ने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान को क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहांगीरी सदा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much, sir. Now I would like to request Kunjal for share some thoughts on this occasion. गुड मॉर्निंग एवरीवन। भाषा बोली अलग अलग है, फिर भी सबका है सम्मान। पूरब से लेकर पश्चिम तक सारा एक है हिंदुस्तान। उत्तर से हिमाचल शोभित जो है उसकी उत्तम शान। दक्षिण में सागर की लहरें करती है उसका गुणगान। लहू बहाकर सीमाओं पर अमन चैन का फूल खिलाया। अपने प्राणों की बलि देकर भारत मां का मान बढ़ाया। देश बटा था जब टुकड़ों में, पटेल ने किया था योगदान। फिर हुआ अखंड सदा को मेरा देश महान।
આજના દિવસે હું કશું જ નહીં કહું, ખાલી બે વસ્તુ કહીશ. મનમાં ભરીને ના જીવો, મન ખોલીને જીવો. મનમાં ભરીને જીવશો તો મન ખોલીને નહીં જીવી શકો. બીજી વસ્તુ, રિવેન્જ લેવો બહુ ઈઝી છે. આજની લાઈફસ્ટાઈલ પ્રમાણે બધાની માઇન્ડમાં થોટ્સ અલગ હોય, કોઈ શું વિચારે છે એ અલગ હોય, પણ આપણે આપણા વિશે શું વિચારીએ એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જે દિવસથી તમે તમારી પોતાની જાતને ઇમ્પોર્ટન્સ આપતા શીખી જશો ને, ત્યારે કોઈના તમને કમેન્ટ્સની જરૂર નહીં પડે. સો પોતાની જાતને મોટિવેટ કરો તો બધું સારું થશે. થેન્ક યુ સો મચ. Thank you, Gunjal, for your sharing. Let us move to another performance. I would like to request Kiran Joshi for speech. Please come, Kiran. सुप्रभात. जितना भी लहू वतन में बहा दिया वतन के वास्ते, जितना भी लहू बहा दिया वतन में वतन के वास्ते, एक भी खतरा न रहने दिया वतन के वास्ते. आती तो है मौत सभी को, आती तो है मौत सभी को और मरते हैं सब लोग. आती तो है मौत सभी को और मरते हैं सब लोग, मगर वही मौत वही है जो आए वतन के वास्ते. આપ સૌને 72મા પ્રજાસત્તાક દિનની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. ઉગતી ઉષાએ સૂર્યના સોનેરી કિરણોથી આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અને અત્રે ઉપસ્થિત આદરણીય પ્રિન્સિપાલ ડોક્ટર કનજ સર, ડોક્ટર વર્મા સર, ડોક્ટર મનાજ સર, તેમજ પૂજ્ય ગુરુગણ અને મારા વાલા ભાઈઓ તથા બહેનો, 15મી ઓગસ્ટ 1947ના દિવસે આપણને આઝાદી મળી હતી, એટલે એ દિવસને સ્વાતંત્ર્ય દિન તરીકે ઉજવીએ છીએ. જ્યારે 26મી જાન્યુઆરી 1950ના દિવસે આપણું બંધારણ ઘડવામાં આવેલું, એટલે એ દિવસને ગણતંત્ર અથવા પ્રજાસત્તાક દિન તરીકે ઉજવીએ છીએ. આઝાદી ભીખમાં નહોતી મળી કે માગવામાં નહોતી આવી, પરંતુ છીનવી લેવામાં આવી હતી, જેમાં 7,20,000 જેટલા લોકોએ પોતાના જીવ માં ભારતી માટે આપી દીધો હતો. એ રાષ્ટ્રભક્તિના યજ્ઞમાં આહુતિ આપનાર તમામ ક્રાંતિકારીઓને, તમામ વીર સપૂતોને અને જે ક્રાંતિકારીનો જે સંદેશનું વહન કરનારા એ તમામ વીર સપૂતોને આજે આપણે સૌ યાદ કરીએ, કારણ કે એમના સૌના લીધે જ આપણે આજે અહીં શાંતિની જિંદગી આઝાદીથી જીવી શકીએ છીએ. આ એ વીરો છે કે જેમણે જનનીના કંઠે નીતરતા હાલરડામાં પણ, બહેનીના કંઠે નીતરતા હાલરડામાં પણ કસુંબીનો રંગ પીધો છે. જનનીના હૈયામાં પોઢંતા પણ કસુંબીનો રંગ પીધો છે. અને વહાલી દિલદારની પગની મહેંદી પરથી પણ કસુંબીનો રંગ ચૂમ્યો છે. અને એ ભારતની ગામડાઓની સીમાડાઓમાં અને વડલાના ઓટલા પર થતા ભજનોની ભક્તિમાં ભક્તોના તંબુર પરથી ટપકેલા મસ્તીનો કસુંબીનો રંગને ચાખ્યો છે. અને એમના શરીરમાં લોહી નહીં પણ આ જ કસુંબીનો રંગ દોડી રહ્યો છે. ત્યારે જ આ ઝંડા પાછળ કેસરિયા થઈ શકે છે. આપણા દેશના એવા વીર સપૂતો કે જેમણે પોતાનું સમગ્ર જીવન રાષ્ટ્રને સમર્પિત કરી નાખ્યું છે. શ્રી મેઘાણીજીના શબ્દોમાં કહું તો એ વીર સપૂતો ભારત માતાને કહી રહ્યા છે કે નથી જાણ્યું અમારે પંથ સી આફત પડી છે, કે નથી જાણ્યું અમારે પંથ સી આફત પડી છે. બસ ખબર છે એટલી કે માતની આકલ પડી છે, બસ ખબર છે એટલી કે માતની આકલ પડી છે. જીવે માં માવડી એક જ ક્ષણ મરવાની ઘડી છે, જીવે માં માવડી એક જ ક્ષણ મરવાની ઘડી છે. બસ ખબર છે એટલી કે માતની આકલ પડી છે. જો દેશની આઝાદી જોખમાઈ જાય તો દેશની આબાદીને બચાવવાનો કોઈ સવાલ જ ઊભો નથી થતો. પણ એ દેશની આઝાદીને બચાવવા જે લોકો મથી રહ્યા છે અને જે પોતાના જીવને જોખમમાં મૂકી અને દેશભક્તિ કરી રહ્યા છે, એમને ધન્યવાદ આપવાનો આપણને મોકો પણ મળે ને તો એ આપણા જીવનની ધન્યતા છે.
કે રક્ત ટપકતી સોસો જોડી સમરાંગણમાંથી આવે, રક્ત ટપકતી સોસો જોડી સમરાંગણથી આવે, કેસરવર્ણી સમર સેવિતા કોમલ સેજ બિછાવે, કાયલ મરતા મરતા રે ગાય આઝાદીના ગીતો, થોકે થોકે લોક ઉમટતા રણ ચોધા જોવાને, સાબાસીના શબ્દ ખોલતા પ્રત્યેક નિપછાને, નિજ ગૌરવ કેરે ગાને, જખમી જન જાગે અભિમાને. જેના શરીર ઉપર ઘા પડેલા છે, જેના શરીરના અંગો કદાચ સાબુત રહ્યા નથી, જે પોતાના જીવનની આખરી ક્ષણ ગણી રહ્યા છે અને એ એક ક્ષણ પણ માં ભારતનું ગૌરવ ગાન ગાઈ રહ્યા છે, એવા દરેક શહીદો, એવા દરેક વીર રત્નોને લાખ લાખ વંદન કરીએ. આપણે પંડિત ચંદ્રશેખર આઝાદ, રામપ્રસાદ બિસ્મિલ, અશફાકુલ્લા ખાન જેવા ક્રાંતિકારીઓને ક્યારેય પણ ન ભૂલી શકીએ. દેશ પ્રેમ અને રાષ્ટ્રભક્તિ એટલે માત્ર બોર્ડર પર લડવા જવું એવું પણ જરૂરી નથી, પણ દેશમાં રહીને જે ક્ષેત્રમાં છીએ એ ક્ષેત્રમાં વફાદાર રહો, પ્રામાણિક રહો, નિષ્ઠાવાન રહો, સ્વચ્છતા રાખો, જનહિત માટે જે વસ્તુઓ છે એનું જતન કરવું એ પણ એક દેશભક્તિ જ છે. દેશભક્તિ માત્ર 2 દિવસ સરે કહ્યું એમ 2 રાષ્ટ્રીય તહેવાર પૂરતી સીમિત નથી, પરંતુ હર હંમેશ દિલમાં દેશભક્તિ હોવી જોઈએ, જવાનોની રિસ્પેક્ટ કરવી જોઈએ, એમના પરિવારને હૂંફ પૂરી પાડવી જોઈએ, એ પણ આપણી દેશભક્તિ જ છે. અને આપણા સૌના માટે એક જાગવાની જરૂર છે. અને મેઘાણીજીના શબ્દોમાં કહું કે જાગો જગના ક્ષુધાર્થ, જાગો દુર્બલ અશક્ત, इंसाथी तख्त पर करालकार जागे, भेदो सौ रूढ़ी बंद, आंखो खोलो रे अंध, नवतम दुनिया नो स्वर्ण सूर्योदय लागे, पृथ्वी ना जीर्ण थाय, आंसुडे साप थाय, रक्ते धोवाय, जालिमो ना दळ भागे, जागो जुगना गुलाम देखाय, दिव्य धाम इंसाफी तख्त पर करालकार जागे, देवा दुष्टों ने दंड घोर काल जागे. देशी रजवाड़ाओने एकत्रित करवानुं જ્યારે હિન્દુસ્તાનમાં એક સૂત્રતા કરવાનું વાત આવી ત્યારે જે રાજાઓએ પોતાનું રજવાડું સમર્પિત કરી નાખ્યું એ રાજાઓને પણ વંદન કરવાનું આજે વંદન કરવા પડે. અને જે એકત્રિત કરવાનું જેણે કાર્ય કર્યું એવા શ્રી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સાહેબને પણ યાદ કરવા પડે. અને સરદાર કોને કહેવાય કે કરે જો ફૂલ की रक्षा उसे हम खार कहते हैं, झुका देते जो अपनी गर्दन को उसे हम हार कहते हैं, लगा के जान की बाजी करे जो देश की रक्षा उसे हम सरदार कहते हैं. અને આ ઝંડાને કહીએ એ ઝંડા અજર અમર રહે છે, એ ઝંડા અજર અમર રહે છે, વજવદ આકાશે જાજે, કો માતાના ખાલી ખોળે આજ બન્યો તું બેટો. જે માતાએ પોતાનો બેટાને ભારત માતા માટે શહીદ થઈ ગયા છે એ માતા માટે તું આજ બેટો બન્યો છે. કપાળના કંકુડા હારી એને પણ બળ દેતો, ઝંડા શાહિદ રહેજે હો હજારો છાના સ્વારપણનો. અને એટલું જ કહીશ કે અહીં કાલે જ અચાનક ખબર પડી, વિશાલ સોરી સરે કહ્યું કે તારે બોલવાનું છે, એટલે પહેલેથી નક્કી નહોતું. અને અંતમાં એટલું જ કહીશ કે જબ ભી આંખ ખુલે તો ધરતી હિન્દુસ્તાન की हो, जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो याद हिंदुस्तान की हो. हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, मगर मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो. जय हिंद. Thank you so much किरण जोशी for your extraordinary speech. Thank you. बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्पीच सुनने के बाद मैं भी कुछ अपने देश के लिए, हमारे शहीदों के लिए कुछ कहना चाहूँगी कि जिन्होंने ना अपनी परवाह करते हुए ना अपनी परिवार की परवाह करते हुए हमेशा हमारे देश को प्रोटेक्ट किया है. सो दैट इज बलिदानों का सपना जब सच हुआ, बलिदानों का सपना जब सच हुआ तभी देश आजाद हुआ. आज सलाम करें उन वीरों को, आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से ये भारत गणतंत्र हुआ. So now hold your breath because it's time to hear most emotional patriotic song which has its own inner power to stir our deepest emotion. So I would like to call Azima and Jill from final year PHMS to sing a song. Please come. यार वो कंजूस तो તમે લોકો તો એક તો કરતા જ નથી.
Thank you. So heart-touching song. Thank you, Zeelan Azima. तीन रंग का नहीं वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है, हर भारतीयों के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही हिंद की जान है, और तीन रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। ऐसी अपने देश के लिए गजब की शक्ति रखने वाले देशभक्त हमारे साथ हैं। Anyone guess who is here? Yes, exactly. I would like to call upon the stage Rahul Gupte for giving dhamakedar speech. હું વધારે નહીં કહું, થોડો ટાઈમ જ. હાઉસ ધ જોશ, હાઉસ ધ જોશ. પ્રતીક, તને પણ બોલ, હાઉસ ધ જોશ. તો વધારે ટાઈમ નહીં લઉં. મારું જે બેઝિક જે કહેવાનું એ છે એ લોકતંત્ર અને આપણી સોસાયટી, રાઈટ. અને હમણાં જે ઇસ્યુઝ જે ચાલે છે તો બહુ એકબીજા વચ્ચે કોરસ ચાલે છે. મેં અગર મોદીને સપોર્ટ કરું અને બીજું કોઈ ના કરતો હોય તો એમના વચ્ચે બહુ આમ એ થઈ જાય છે કે પોલિટિકલ ઓપિનિયન હમણાંના ટાઈમમાં ફર્સ્ટ ઓપિનિયન ફ્રેન્ડશિપ ડિસાઇડ કરે છે, અને દેટ ઇઝ અ વેરી રોંગ થિંગ. સોશિયલ મીડિયા પર ઇઝ ઓલ હેટેડ. અગર કોઈ નોન ગવર્મેન્ટ કે ગવર્મેન્ટને ઓપોઝિંગ કોઈ પોસ્ટ હોય તો બધા કોમેન્ટ્સમાં બહુ ઇટ્સ વેરી રિડિક્યુલસ દેટ બધા બહુ એ કરે છે. ફ્રેન્ડશિપ તૂટે છે. અને હમણાં જ આઈઆઈટીએ રિસર્ચ કરી હતી સોશિયલ મીડિયાના જેટલા બી પ્લેટફોર્મ્સ છે કે કેટલા આટલા કોલ્સ થાય છે, તો ઓલમોસ્ટ 45% જે આપણા યુથ છે એ આ પોલિટિકલ અને જે નોન પોલિટિકલ યુથ છે એ જ બીજા વચ્ચે ઝઘડે છે. તો ધેટ ઇઝ અ વેરી રોંગ થિંગ. અટલ બિહારી વાજપેયીએ લોકસભામાં કીધું હતું કે सरकारें आएंगी जाएंगी पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी पार्टियां बनेंगी बिगड़ेगी, लेकिन मेरे देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, मेरे देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए. આપણા ઇન્ડિયાના પહેલા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઓનરેબલ જવાહરલાલ નહેરુ એમની બુકમાં એમને એક બહુ મસ્ત ઉલ્લેખ કર્યો છે કે જ્યારે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બન્યા હતા ત્યારે એમના પહેલા જ પબ્લિક ફંક્શનમાં છે ને એક 60 વર્ષની એક વુમન આવી હતી અને બહુ જ કોસવા લાગી હતી એમને કે આપને ये नहीं किया वो नहीं किया, બહુ જ કોસવું કે આ પાર્ટીશનનું એ થયું. બધા બહુ ગભરાઈ ગયા હતા કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટરને કીધું, આ પ્રાઇમ મિનિસ્ટરને કીધું કે જવાહરલાલ નહેરુને કીધું. જવાહરલાલ નહેરુએ એવું કીધું કે ધીસ ઇઝ વોટ આઈ વોન્ટેડ, ધ સ્પિરિટ ઓફ ધ ડેમોક્રેસી ઇન ધ પીપલ, એન્ડ ધેર બુકનું નામ છે ટ્રી સ્પીચ ડેસ્ટિની. ધીસ ઇઝ વોટ ધ સ્પિરિટ, રાઈટ. સો કેટલું બી આપણે પોલિટિકલ એ હોય, કોઈ જીતે ના જીતે, આપણે આપણા વચ્ચે યુનિટી હોવી જોઈએ. ધેટ ઇઝ ધ મેઇન થિંગ. અગર કોઈ સપોર્ટ કરે ના કરે, વી હેવ ટુ બી નોન પોલિટિકલ. હમણાં જ્યારે મેં 8th સ્ટેન્ડર્ડમાં હતો ત્યારે ગુજરાત વિધાનસભામાં અમને ટૂર પર લઈ ગયા હતા, કેમેરા અલાઉડ નહોતો ત્યાં. તો ત્યાં અમે જોયું હતું કે છે ને જે રૂલિંગ પાર્ટી અને નોન રૂલિંગ પાર્ટી વચ્ચે બહુ ઘર્ષણ એક ડિબેટ થતું હતું, બહુ ડિબેટ થતું હતું. બધા એક આમ આંગળી કરીને વાત કરે, બહુ ઘર્ષણ. હવે અમે તો ગભરાઈ ગયા કે આવી રીતે ઝઘડે છે તો પછી તો શું થશે. મેં તો 8th સ્ટેન્ડર્ડમાં તો મેં તો કીધું બબાલ થશે, બહાર બબાલ થશે બધા પોલિટિશિયન્સ. પછી હવે જે પણ વિધાનસભા લોકસભા હોય તો ત્યાં પાર્લામેન્ટની એક કેન્ટીન હોય છે, બહુ મોટી એકદમ હોલ જેવો કેન્ટીન હોય છે. તો અમે ત્યાંથી પાસ થતા હતા અને જે બે પોલિટિશિયન બહુ ઝઘડાતા હતા ને એક જ એક પ્લેટમાં સમોસું ખાતા હતા ચટણી લઈને. આ વાત છે કે જે નેતાઓ ટીવીના સામે લોકસભામાં કે મીડિયામાં જે ઝઘડે છે ને, ખાસ કરીને મીડિયામાં જે ઝઘડે છે ને, એના પૂરતું જ રાખે છે, એના પર્સનલ લાઈફમાં નહીં આવવા દેતા. અને એ જ વસ્તુ આપણને શીખવાની છે. આપણે કેટલા બી આપણા પોલિટિકલ ઓપિનિયન અલગ હોય, જુદા હોય, ના હોય, વી હેવ ટુ રિસ્પેક્ટ ઈચ અધર આઈડિયોલોજી. અને એ જ લોકતંત્ર છે. લોકતંત્ર ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ નોટ ટુ ગવર્મેન્ટ. ગવર્મેન્ટ છે પોલિટિકલ પાર્ટી છે. ગવર્મેન્ટ અને પોલિટિકલ પાર્ટી વચ્ચે આસમાન જમીનનો ફરક છે. પોલિટિકલ પાર્ટીની આઈડિયોલોજી હોય છે, એજન્ડા હોય છે, બહુ બધા છે. જ્યારે ગવર્મેન્ટમાં ઓફિસર્સ હોય છે, આઈએએસ ઓફિસર્સ, આઈપીએસ ઓફિસર્સ, જેને કોઈ સરકારની ક્રેડિટ આપવું અને મિનિસ્ટર્સની ક્રેડિટ આપતા. ઓનલી 10% of the political party form the government, એ જે મિનિસ્ટર્સ હોય છે. And the third thing that I would like to tell is કે આ લોકતંત્રનું તો મેં કીધું જ, આપણે એકબીજાની ઓપિનિયનની રિસ્પેક્ટ કરવાની ભલે કઈ હોય. હવે મારા ઇન્સ્ટાગ્રામના અકાઉન્ટમાં તમે જોશો ને તો 5 પાકિસ્તાનના ફોલોઅર્સ છે,
હવે બધા કે રાહુલ તું પાકિસ્તાનનો એ કરે છે, કઈ નથી. મેં તો ઇન્સ્ટાગ્રામ પર કેટલી આર્મીની સ્ટોરી મૂકી છું, બધા જોતા જ હશો. તો પણ એ લોકો સ્પોર્ટિંગલી લે છે અને સમજે છે કે હા ટેરરિઝમ આપણા બે વચ્ચેનો એક મ્યુચ્યુઅલ પ્રોબ્લેમ છે. એ લોકો સમજે છે, કોઈક વાર ડિબેટ થાય છે, કોઈક વાર ડિસ્કશન થાય છે, બટ દે અન્ડરસ્ટેન્ડ. સો વોટ આઈ વોન્ટેડ ટુ ટેલ ઇઝ કે પોલિટિકલ ઓપિનિયન્સ, ક્રોસ બોર્ડર ટેરરિઝમ એ બધા પ્રિવેલ રહેશે અને આગળ થશે નહીં થાય કે કોને ખબર. બટ વી હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ હ્યુમેનિટી, બેઝિક હ્યુમન સ્પિરિટ, ફ્રેન્ડશિપ એન્ડ રિલેશનશિપ ઓફ અવર ટાઈમ. ધેટ્સ વોટ આઈ વોન્ટેડ ટુ ટેલ, રાઈટ. એન્ડ ધ સેકન્ડ કે હવે તો મેં ફાઇનલ યરમાં છું કે લોકડાઉન થયું, બધા ડોક્ટર્સ, સોલ્જર્સ પણ શહીદ થયા LAC પર, LOC પર. અને એક જે પ્રોફેશન છે ને જે ઇગ્નોર બહુ રહ્યું છે એ છે ટીચિંગનું પ્રોફેશન. કે આપણા ટીચર ઉપર હવે આવું ના કહેતા કે હા ફાઇનલ યરમાં છે લાઉડ ટીચર્સને મસ્કા મારે છે, કે એવું નથી, મેં મસ્કા નહીં મારી. પણ ધીસ ઇઝ રિયલ થિંગ કે હમણાં 4-5 દિવસ પહેલા ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસમાં આર્ટિકલ આવ્યો હતો કે આ લોકડાઉનમાં ટીચર્સ ઉપર આટલો લોડ આવ્યો હતો ને કે જે 40-50 યર્સના જે હવે નવી ટેકનોલોજી હતી, ઓનલાઈન ટીચિંગનું એ હતું, તો બહુ એમને નહોતું ફાવતું. વી હેવ ટુ રિસ્પેક્ટ. આપણા પેરેન્ટ્સ ટીચર હશે અને એમને નહીં ફાવે તો વી હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેમ, વી હેવ ટુ ગાઈડ ધેમ. આના અંદર કોઈ એક પેલું ઇન્ફિરિયર કે એવું કંઈ આપણે એ નહીં બતાવવાનું. અમુક હમણાં કિસ્સો પણ આવ્યો હતો કે કોઈ એક ટીચર હતા 50 વર્ષના એજના હતા, લેક્ચરર હતા, ફિઝિક્સના પ્રોફેસર હતા. એ લેક્ચર લેતા હતા અને બહુ બધા સ્ટુડન્ટ્સ છે ને વલ્ગેરિટી ક્લાસમાં એટલે ઓનલાઈન લેક્ચરમાં એ કરી, પેલા ટીચર્સ રડવા લાગ્યા, રીસર રડવા લાગ્યા. સો હવે એ જગ્યાએ આપણે આપણા પેરેન્ટ્સ જો ટીચર હોય, આપણે ઇમેજિન કરીએ કે આપણા મમ્મી પપ્પાને કોઈ આવી ગાળો આપે ચાલુ લેક્ચરમાં અને આવું વલ્ગેરિટી તો આપણને કેવું લાગે. પછી એની ડોટર આવી, એ ડોટરે પછી સમજાવ્યું અને બધું એ કર્યું. સો વી હેવ ટુ રિસ્પેક્ટ ઈચ અધર્સ પ્રોફેશન. અને ઇનફેક્ટ સર IIM છે ને રિસર્ચ કરી હતી આ લોકડાઉનમાં કે ટીચર્સના મેન્ટલ ડિપ્રેશનના કેસીસમાં કેટલા વધ્યા છે, તો ઓલમોસ્ટ એ 40% વધી ગયા હતા. ઓલરેડી 60% હતું. બહુ બધા છે, આપણે ઇગ્નોર કરીએ છીએ બધી વાતોને, બટ ઓલમોસ્ટ 40 to 45% કેસીસ એના ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયા હતા ટીચર્સના મેન્ટલ ડિપ્રેશનના. આપણે સ્ટુડન્ટ્સના ડિપ્રેશનનું વિચારીએ છીએ, બહુ બધા ડિપ્રેશનનું એ કે છોકરી નહીં મળતી એટલે ડિપ્રેશનમાં જતો રહ્યો બિચારો. પણ આપણે પછી બહુ બધા પ્રોફેશનના કે કોઈ બિઝનેસ કરે છે એ ડિપ્રેશન છે, પણ ટીચિંગનું પણ એક ડિપ્રેશન હોય છે, એમનું પણ એક અલગ લોડ હોય છે, રાઈટ. અને છેલ્લે મેં એવું જ કહીશ કે હવે આપણે નોજવાન છે, ઓલમોસ્ટ મેજર યંગ ફોર્સ અને વર્લ્ડમાં જે મેજર યંગ ફોર્સ છે એ આપણા ઇન્ડિયામાં છે. સો અને મેજોરિટી છે ને 40 અને 50, મેં તો કહું છું આમ તો બહુ વધારે છે, પણ આ મેં કહું છું કે 40-50% છે ને છોકરીઓના પાછળ જ પડે છે. કે રિલેશનશિપ અને એટલા જ ઇસ્યુઝ હોય છે. અને આમે મારું પોતાનું નહીં કહેતો, જેટલા બી ટાટા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સોશિયલ સાયન્સીસ, ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેનેજમેન્ટ એ બધાએ રિસર્ચ કરી છે, તમે ગૂગલ પર પણ જોઈ શકો છો કે મેજોરિટી ઓફ ઇન્ડિયન યુથ એ ખાલી 2 ઇસ્યુઝમાં જ ફસેલું છે. ફર્સ્ટ પોલિટિકલ ડિસ્કશન્સ એન્ડ સેકન્ડ ઇન્ટરપર્સનલ રિલેશનશિપ્સ. રાધર દેન કોઈને તો હમણાં ઇન્ડિયાનો પ્રેસિડેન્ટ બી નહીં ખબર હોય. રામનાથ કોવિંદ છે આપણા સર, પ્રેસિડેન્ટ ગુજરાતનો આપણા ડેપ્યુટી, આપણા પોતાના ડિસ્ટ્રિક્ટના IAS ઓફિસર છે, કોણ છે એ પણ નહીં ખબર હોય. અને છેલ્લે એક શાયરી કહીશ, હમણાં જ મેં બનાવી માઇન્ડમાં કે मत कर मैं से भी उस लड़की से जो तेरे को इग्नोर करती है, मत कर मैं से जो उस लड़की को जो तेरे को इग्नोर करती है, मत पड़ उस झमेले में, मेहनत कर, अपना हौसला बढ़ा और एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा जमाना तुझे सैल्यूट ठोकेगा. Such a great speech. India is a country full of beautiful landscapes and beautiful people. India is a unique country with diversity. For this beautiful country, on this occasion, Akshita and Hiral plan to dance the famous beats of patriotism, and the song is Surprise. Please, Akshita and Hiral. वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे
थोड़ी सी धोखने वाली धक 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू के, ये सब तो मिला मिला ले, फिर रंग तो खिला खिला ले, ये सब तो मिला मिला ले, फिर रंग तो खिला खिला ले, और मोए तो रंग दे बसंती यारा, मोए तो रंग दे बसंती। हो हमारे यार कोई यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज ऐसे हैं चाहे जैसे हैं, अरे जो भी है जैसे हैं खुद पे हम नाज हमको ये जमाना चाहो तो हमको हार जमाना, बात हम चार साथ हम इस बात गलबाते कहते हैं हमको प्यार से के हार से इंडिया वाले, जिले हार से इंडिया वाले, छक्के सुधारे हम इंडिया वाले। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा है तुम भी कहो, चलते शरारे हैं पानी के धारे हैं, हम काटे कटते नहीं, जो वादा करते हैं करके निभाते हैं, हम पीछे हटते नहीं। दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। સચ્ચે એનર્જેટિક પરફોર્મન્સ, પણ તાળીઓ ના પડી એટલી બધી. હો સવાર સવારમાં એટલા કંજૂસ. Thank you so much, Hiral and Anshita. Now, I would like to call the most humble, my laughing partner, most comedian, our colleague, Zeel Agrawal from Final Year PHMS for a speech. हम अपनी जान के दुश्मन को ही अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को ही अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, तूफान कहते हैं। मैं ज़ील अग्रवाल आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपने कुछ विचार राष्ट्र प्रेम के प्रति जाया करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का मतलब सिर्फ वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हमारा देश फिरंगियों के फेरों में फंसा हुआ था, तब रंग दे बसंती चोला के नारों पर टोलों के टोले उमड़ आते थे, और वंदे मातरम के नारों से लहू में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों को हिलाकर रख देता था। उसके बाद 62, 65 और 71 में अपना सुहाग गवा देने वाली महिलाएं जब घर के हालात यूं हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनी हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, और एक ऐसा विस्फोट हुआ सारे जिस्म की ही बोटियां चली गई, और आपके लिए तो सिर्फ एक इंसान ही मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। पूरा परिवार अपनी देशभक्ति इस तरह से जाया करता था, तब देश बलिदान मांगता था। आज देश बलिदान नहीं मांगता, आज देश मर जाने
कोई व्यक्ति अपना कार्य पूरी ईमानदारी और नैतिकता से करता है तो मैं उसे उसकी देशभक्ति मानती हूँ। सिर्फ 2 दिन तिरंगा लहराना देशभक्ति नहीं है। यदि अगर यही देशभक्ति है तो जो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में तिरंगा बेच रहा होता है, आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसके अंदर की पेट की शक्ति है जो इसे ये करने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालय को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालय को जानते हैं, पेट के भूखे सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। और मैं यही कहना चाहूंगी, अपने परिवार, समाज और देश के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर एक देशद्रोही के जीवन में आने वाला भूचाल है देशभक्ति, ताकि हर एक देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह, वरना ये कब्र भी तेरी और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। पर एक सच्ची देशभक्ति तब आ उठती है जब वृद्धाश्रम में हम हमारे माँ बाप को छोड़ के आते हैं और मुसीबत में लोगों को जान बचाने के नहीं, और हम सेल्फी खींच के हमारी लाइक्स बढ़ाने में लगे हुए होते हैं तब। और हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 भोग, और भूखे तरसे सो जाते हैं लोग, भूखे तरसे सो जाते हैं लोग। और मैं आपको बता दूं, महिला सुरक्षा के मामले में आज भी हमारा देश 4थे नंबर पर आता है। और हम एक ऐसे समाज में जीते हैं कि जहाँ निरक्षरता बहुत है। सर्व शिक्षा अभियान के नाम पर बेरोजगार बच्चों को उसका झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है। मुझे सिर्फ इसी बात का गुरूर है कि मैं भारत की हूँ और ये भारत देश मेरा है। और यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे तो हम कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं, जहाँ हिंदू भी जन्म लेते हैं, मुसलमान भी जन्म लेते हैं, लेकिन कमबख्त अब इंसान जन्म नहीं लेते। और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए ना ही एक हिंदू और ना मुसलमान, सिर्फ एक अच्छे इंसान की जरूरत है। अब मैं आई एम बीइंग ए स्टूडेंट, आई एम बीइंग ए इंडियन, प्राउड टू बी डॉटर ऑफ आवर कंट्री। एंड मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे कहते हैं कि होम्योपैथी हमारे लिए क्या कर सकती है वो नहीं, एक होम्योपैथी के लिए क्या कर सकता है वो इम्पोर्टेंट है, वैसे ही हम हमारी कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं वो ज्यादा मायने रखता है। भारत महान था, महान है और महान ही रहेगा। थैंक यू। Wonderful, Zeel. Thank you so much for this kind of inspirational speech. Now we would like to hand over the mic to Fatima and Piyush. Thank you so much. First of all, Happy Republic Day to all of you. चलो फिर से खुद को जमाते हैं, एकता का झंडा फिर से लहराते हैं। सुनहरा रंग है गणतंत्र का शहीदों के लहू से, ऐसे शहीदों को हम सब सर झुकाते हैं। Now I would like to call upon Pratik Patil for his patriotic song. Hello.
बहे सरहदों पे कितने ही शहीदों के लहू बहे उनकी ये कुर्बानियां याद हमें भी रहे उनकी ये कुर्बानियां याद हमें भी रहे उनके जैसे उड़ने का अंदाज है जरा आजाद मैं हूँ और वतन आजाद है मेरा आजाद मैं हूँ और वतन आजाद है मेरा वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सरफरोशी को चले हैं बांध के कफन दुश्मनों को कर दे उनकी मिट्टी में दफन अब जो हमारी तरफ बढ़े कोई कदम इतिहास से मिटा देंगे बुनियाद उनकी हम मर के भी मिटने ना दे मर के भी मिटने ना दे तिरंगे की ये शान हिंदुस्तान तेरे लिए दे देंगे अपने जान वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम जय जय शिवराम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम Thank you, Pradeep, for your soulful performance. It is said, speech is the mirror of the soul. As it speaks, so is she. So I would like to invite Zainab to express her views on this Republic Day. Good morning, respected principal, teachers, and to all of you present over here. On this auspicious occasion, it's a great opportunity for me to speak about this special day. As you all know, we have gathered here to celebrate the 72nd Republic Day of our nation. Republic Day celebrated every year on 26 January has gained special significance in the history of India. Every year, the national event is celebrated with lots of joy and happiness to make the event colorful and memorable. 7 decades ago, on this day, that is 26 January 1950, our Constitution of India came into effect. And so this day is celebrated as National Day to commemorate the moment. We are all aware that India got its independence on 15th August 1947. But the nation didn't give a constitution of its own. Instead, was governed under the laws implemented by British. However, after many deliberations and amendments, a committee headed by Dr. B.R. Ambedkar submitted a draft of Indian Constitution which was adopted on 26 November 1949 and officially came into effect on 26 January 1950. Republic means supreme power. Citizen living in Republic nation enjoys the privilege to elect the representatives or political leader to lead the country. Thus, in Republic India, every citizen enjoys equal rights irrespective of status and gender he or she belongs to. Our constitution gave us the rights as citizens of a free democratic nation, but also placed on us the responsibility to always adhere to the central tenets of our democracy, that is justice, liberty, equality and fraternity. The main Republic Day celebrations is held in the national capital New Delhi at the Rajpath in the presence of the President of India
and the colorful displays will be exhibited by every state in epic style culture. ए मेरे वतन के लोगों, सराख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी सर याद करो कुर्बानी. थैंक यू. जय हिंद. Is there anyone from BPD who wants to share their views on this occasion? Any song or anything? Go on. Any speech? Okay, thank you. या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. This poem truly signifies the real motto of our institution, that is women empowerment. तो मैं अब मंच पर बुलाना चाहूंगा ऐसी ही भारत की बेटी को और ऐसी एक बुलंद आवाज को, पवित्रा. हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. आज मैं कुछ है ना कहना चाहूंगी वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन्स एजुकेशन, उसके बारे में. हम बुक में क्या पढ़ते हैं? वुमेन एम्पावरमेंट क्यों जरूरी है? कि उनके है ना अच्छा लाइफस्टाइल हो, वो अपने देश के लिए कुछ करे, हमारी इकोनॉमी में कुछ हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े. लेकिन रियलिटी चेक, क्या ये होता है? आपको क्या लगता है, ये होता है कि है ना इकोनॉमी पर है ना बहुत इफेक्ट आता है लड़कियों के पढ़ने पर? कभी आपको पता है वुमेन की लिटरेसी रेट क्या है? 65.46%. क्यों? ये आप सबको पता है क्यों इतना कम है अपने इंडिया का वुमेन लिटरेसी रेट? यहाँ के लोग क्या मानते हैं, बेटी को पढ़ाएंगे तो बेटी है ना अच्छे घर पे जाएगी, अच्छे ससुराल में जाएगी. क्या ससुराल में सब कुछ है? ये तो कभी किसी ने नहीं कहा कि ससुराल में जाके कुक और मेड का काम करवाएंगे. कभी नहीं कहा गया. हमेशा लड़कियों को ऐसा बोला जाता है, उनके पापा क्या सोचते हैं कि है ना अगर बेटी को ज्यादा पढ़ाएंगे तो ज्यादा पैसा खर्च होगा. वो पैसा हम क्यों यूज करें उनके लिए? उससे अच्छा है ना शादी करवा देते, वो अच्छा रहेगा. हमेशा बचपन से बेटियों को क्या सिखाया जाता है कि हमेशा है ना बड़ों का आदर करो, छोटों से प्यार से बात करो, सबकी इज्जत करो. नो डाउट करना चाहिए, ये किसी ने ना नहीं कहा, ये करना ही चाहिए. लेकिन इससे पहले बेटी को क्यों ऐसा नहीं कहा जाता कि वो पहले सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, अपने परिवार का ख्याल रखे. हर देश के पिता को यही है ना टेंशन होता है कि है ना मेरी बेटी को पढ़ा दूंगा तो है ना वो तो दूसरों के घर पैसे लेके चली जाएगी, कमाएगी तो क्या दूसरों के घर पे देगी. क्या ये सच में ऐसा होता है? क्यों है ना देश में ऐसा है ना माना जाता है? क्यों? और इसमें लड़कियों की भी मैं गलती मानती हूँ. जब आप लोग पढ़ लिख जाते हो तब अपने पापा के जब मुसीबत में होते तब आप क्यों नहीं कहते कि पापा चिंता मत करो, मैं हूँ. जिस दिन से ये देश की हर बेटी ये कहना चालू कर देगी कि पापा आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ, उस दिन के हर एक घर की बेटी वो घर का बेटा बन जाएगी. और उस दिन से बेटियां किसी घर के लिए बोझ नहीं कहलाएगी, वो इस दिन के लिए अपने बेटी का सम्मान बन जाएगी, हर पिता का सम्मान बन जाएगी. हमेशा बेटियों का ऐसा नहीं है कि बेटियां पराया धन होती है. इस सोच के लिए मैं किसी पर्टिकुलर एक इंसान को पर नहीं मानती कि है ना कि ये है ना बेटियां पराया धन होती है. इसके लिए होल सोसाइटी है ना रिस्पॉन्सिबल है. और हम लोग ये यूथ है, हमको ये सोच बदलनी चाहिए कि है ना हम बेटियां पराया धन नहीं होती है, घर की लक्ष्मी होती है. और मैं इसी के लिए मैंने थोड़ा कुछ लिखा है, उसमें मैं बोलना चाहूँगी. जब हम जन्म लेते हैं माँ लक्ष्मी का रूप मानते हैं हमें. जब हम जन्म लेते हैं माँ लक्ष्मी का रूप मानते हैं हमें. जब हम ज्ञान बढ़ाते हैं माँ सरस्वती का अवतार समझते हैं हमें. जब भारत में पढ़ी है, भारत के आज़ादी पर खतरा बढ़ा है, माँ दुर्गा को भी लड़ते हुए देखा है सबने. हमें ये सिखाया जाता है कि बड़ों का आदर करो, हमें ये सिखाया जाता है छोटों से प्यार करो. और जब बात अपनों पर आती है तब हमें ईंट का जवाब गोलियों से भी देना आता है. थैंक यू.
speech. Thank you, Pavitra. It was a dedication to all the strong women out there. May we know them, may we be them, may we raise them. कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद कहाँ तक पाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक बाला जाए। मैं बुलाना चाहती हूँ दीप पटेल को, जो भारत के इतिहास एवं वर्तमान परिस्थितियों के बारे में दर्शाना चाहता है। मोहब्बत रहमान किसी की तो कुछ भगवान लिखते हैं, मोहब्बत रहमान किसी की तो कुछ भगवान लिखते हैं, मिटा अपने इश्क को कुछ भगवान लिखते हैं, मगर उन तलवारों के बेटे, उन मस्तानों की टोली जो खून बहा सरहद पर अपना हिंदुस्तान लिखते हैं। इस पवित्र अवसर पर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर खनत सर और गुरुजन, आप सभी को मैं गणतंत्र दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये 6 पंक्तियां अपना परिचय देना चाहता हूं। मैं एक मकसद के तहत यहाँ उपस्थित हुआ हूं। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूं। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूं। कविता लिखनी नहीं आती, बस चीखे लिखता जाता हूं। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। हुक्मरां सभी व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर और बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया। आज की युवा पीढ़ी सिर्फ इश्क करना ही जानती है या अपनी रगों में इंकलाब के लिए खून भी रखती है। ये आपके खून को मैं चुनौती देना चाहता हूँ। फूलों की राहें छोड़ अब हमें कांटों पर चलना होगा। छोड़ मखमली सेजों को अंगारों सा जलना होगा। नारी शक्ति को रण में आके चंडी रूप धरना होगा। यदि देश बचाना है तो भगत सिंह बनना होगा। पुनः लंकेश ने भी जब वक्ष पर खिल ठोका है, राम धनुष की प्रत्यंचा को क्यों चढ़ने से रोका है। प्रकांड ज्ञानियों का भी जब धर्म साधना पड़ता है, बाण साधना पड़ता है, हर बात साधना पड़ता है। राणा प्रताप संत होते तो नींद अकबरी उड़ती क्या। 57 में अंग्रेज रुलाए सिंधनी के वार ने। मैसूर का मस्तक ऊंचा रखा टीपू की तलवार ने। मंगल ने भी आवेशों में बागी गोली चलाई थी। भगत सिंह के विस्फोटों ने गोरी नींव हिलाई थी। वीर भगत सिंह सा यौवन हर घर में पूजा जाएगा। अब कोई भी दुशासन चीर खींच ना पाएगा। कहा बुजुर्गों ने जब करने का वही जमाना आया है। लातों का कोई भूत आज तक बातों से क्या माना है। गद्दारों दिन गिन लो चीन चीन कर कहता है। अरे इस छोटे से सीने में एक भगत सिंह भी बसता है। सर आपको पता है पाकिस्तान एक जिम्मेदार देश है। पूरे विश्व में कहीं पर भी आतंकी घटना हो वो हंसते हंसते जिम्मेदारी ले लेता है। फिर पिता को ठेस पहुंची, फिर बेटा नादान हुआ है। हमारा बेटा ही है ना, हमारी जमीन पे पला पड़ा है। फिर पिता को ठेस पहुंची, फिर बेटा नादान हुआ है। फिर फिरौन ने सीमा लांगी, भस्मासुर को अभिमान हुआ है। भूल गए कृपाएं हमारी कितनी भूमि छोड़ी है। LOC के आगे जाके हर सेना वापस मोड़ी है। हर युद्ध हराया है तुमको समाधान तुम भूल गए। 47 में किया गया भूमि दान क्यों भूल गए। घुटनों को फैलो हाथों को हमने भिक्षा दी है जी। देखे को अनदेखा करके जहर की घुटकी पी है जी। ताज धमाके जैसे कितने जख्मों को झेला हमने। फिर भी मैदानों में क्रिकेट मैच भी खेला हमने। कश्मीर समस्या हमने छाती पे ले रखी है। पीओ के नाम की दौलत तुमको भीख में दे रखी है। अपने अग्नि शस्त्रों की भी चीख दबा के रखी है। और अश्वमेघ के घोड़ों पर भी लगाम लगा के रखी है। ऐसा ना हो माँ भारती खुद विवाद करने निकल पड़े। काली का वो रूप धरे और कप्पर भरने निकल पड़े। ऐसा ना हो जनमन गूंजे कराची के दरबारों में और हम तिरंगा लहरा आए रावलपिंडी के
चौबारों पे। चार पंक्तियां दिल्ली के संसद को कहना चाहता हूं। ये पंक्तियां अच्छी लगे तो आपकी आवाज संसद तक गूंजनी चाहिए। शांति श्वेत परचम देख गिरायूं भू पर है, अब तो जागो संसद वालों पानी सिर के ऊपर है। या दुश्मन रक्त से स्नान करो या शर्म करो विस्पान करो, ये पहेलियां बुझाना बंद करो या जंग का ऐलान करो। अपना मन अपनी सभी बातें इस अदालत में रख के विदा लेना चाहता हूं। अगर आपको पंक्तियां अच्छी लगी हो तो अपने दोनों हाथ उठा के विदा कीजिए। ये अंतिम 8 पंक्तियां आपके सामने रखता हूं। प्रीत की जो शीत गिरे तो गीत प्रेम के गाऊंगा, मौसम हो जो हंसने का तो बारंबार हंसाऊंगा। जुल्फ लिखूंगा गजरा रे और चाल ढाल मधुमास लिखूंगा, किसी की धड़कन को किसी के यौवन का एहसास लिखूंगा। पर माँ भारती को दर्द हुआ तो चीखूंगा चिल्लाऊंगा, गांव गांव गली गली में जाके माँ की पीड़ सुनाऊंगा। सुभाष पटेल को रात को रेग जगाऊंगा, अशफाक उल्ला खाकी बागी बाती को दोहराऊंगा। और शमशीर बना के कलम को अपने तिरंगे का जयगान लिखूंगा, दुश्मन की छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान। धन्यवाद। Without taking much of your time, let us move towards the next performance. Fatima, do you feel some turbulence here? Yes, I do. The heartbeats have gone up and everyone is eager to sink into the depth of patriotic music song that brings us all in a moment. Now I call upon stage Akshay Patel for his patriotic song Chunar.
Thank you, Akshay, for such a soulful song. Now I call Upesha and Mansi for the performance. देखा पेरिस देखा लंदन देखा पेरिस देखा और देखा जापान माइकल देखा एल्विस देखा सब देखा मेरी जान सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान दूसरा हिंदुस्तान दूसरा हिंदुस्तान Thank you. Thank you, Upesha, for such a melodious performance. ફાતેમા તને ખબર છે ઇન્ડિયાને બેસ્ટ કેમ કહેવાય છે? ના. અરે આને તો કઈ જ નથી ખબર. India is known for the longest history, greatest culture, oldest civilization, highest languages and coolest festivals and many more. इतनु બધું છે? હા તો चलो तो आप कोई बीजा सी भी जानकारी
Now I would like to call Mansi Pandya to express her views on Republic Day. Happy Republic Day to all. એન્ડિંગમાં આપણી સ્પીચ હોય અને સ્ટાર્ટિંગમાં રાહુલ ગુપ્તે, કિરણ જોશી એવા સરસ મજાના સ્પીકર હોય તો એન્ડિંગમાં આપણા માટે કશું બચે નહીં બોલવા માટે. બરાબર. પછી અને બીજું મારી વાત કહું તો હું છે ને કોઈ દિવસ સ્પીચ પ્રિપેર કરતી જ નથી. તો મેં એવું વિચાર્યું હતું બેઠા બેઠા કે જે વધે એ આપણું. બરાબર. એટલે હવે મને એવું લાગે છે કે 2 લીટી વધી છે. એ છે જય હિન્દ, જય ભારત. બરાબર. ઓકે ચાલો. તમારામાંથી કદાચ કોઈ મારા જેવું હશે કે જેની અટપટી તારીખો હોય, ડેટ પેલી ડેટ નહીં, હા, ડેટ યાદ ના રહેતી હોય. બરાબર. તો એમને ક્યારેક ને ક્યારેક એવો ક્વેશ્ચન આવ્યો હશે મગજમાં કે ભાઈ આ 26 જાન્યુઆરીએ ગણતંત્ર દિવસ રાખ્યો છે કે 25 જાન્યુઆરી ના રાખ્યા આ લોકો, કે પછી 15 જાન્યુઆરી અને સૌથી બેસ્ટ 1 જાન્યુઆરી, હે ને? પણ એવું નથી. તો એક દિવસથી મેં મારા ફાધરને આ ક્વેશ્ચન કરેલો. તો પપ્પાએ મેં એવું કીધું હતું પપ્પાને કે પપ્પા આ 26 જાન્યુઆરી રાખે છે ગણતંત્ર દિવસ, તો 25 જાન્યુઆરી ના રાખે, એક દિવસમાં શું જવાનું છે આ લોકોનું? તો પપ્પાએ કીધું બેટા બધે આપણા બાપાના કાયદા ના ચાલે. બરાબર. આવું કીધું પપ્પાએ. અને સાચું રીઝન એમને મને કીધું તો હું તમને શેર કરું જે મને એમને કીધું. જો તમને ખ્યાલ નહીં હોય તો ખ્યાલ આવશે અને ખ્યાલ હોય તો રિવાઇઝ, હે ને? ઓકે. તો 26 જાન્યુઆરી 1930 એટલે કે દેશ આઝાદ થયો એના પહેલા 1930 26 જાન્યુઆરી પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ કે જે ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ હતા એ ટાઈમે, તો એમને 26 જાન્યુઆરી 1930ના દિવસને પૂર્ણ સ્વરાજ તરીકે ઘોષણા કરી. તો હવે આપણને આઝાદી મળી 15 ઓગસ્ટે, એટલે એવું તો કહેવાય ને કે ભાઈ 26 જાન્યુઆરી આઝાદી આપજો ને થોડું સારું લાગે, અમારો દિવસ યાદગાર રહી જાય, એવું તો કહેવાય નહીં. તો ભવિષ્યમાં આ દિવસનું મહત્વ ઘટી ના જાય એટલા માટે આ દિવસે જે ભારતનું બંધારણ છે એ અમલમાં મૂકવામાં આવ્યું. બરાબર છે. એટલે આ 26 જાન્યુઆરીના પાછળ 26 જાન્યુઆરીએ આ ભારતનું બંધારણ જે અમલમાં મૂકવામાં આવ્યું એના પાછળ આ સ્ટ્રોંગ રીઝન છે. જ્યારથી ઓલમોસ્ટ ખ્યાલ નથી હોતો, બધા બધું બોલે છે કે ભાઈ કરપ્શન ના કરો આ તે, પણ આ જે બેઝ છે એ બધાને ખ્યાલ નથી હોતો. તો ખ્યાલ રાખજો. તો કાલે ઉઠીને તમને તમારા બચ્ચાઓ પૂછે કે કોઈના બચ્ચાઓ તમને પૂછે તો ગપ્પા મારવાનો વારો ના આવે કે બેટા એ વખતે મિટિંગમાં આપણી ફેમિલીને નહોતા બોલાયા તો મને ખ્યાલ ના હોય આવી નાની મોટી વસ્તુ, આવા ગપ્પા ના મારવાના થાય. ઓકે. તો બસ આટલી નાનકડી જ મારી સ્પીચ છે. સ્પીચના નામે પ્રવચન નથી. અને થેન્ક યુ સો મચ જે લોકોએ મને શાંતિથી સાંભળી એમને પણ, અને અહીંથી દેખાય છે મને એટલે જે લોકોએ મને શાંતિથી સાંભળવાનું ફક્ત નાટક કર્યું એમને પણ થેન્ક યુ. બરાબર છે. તાલીઓ પાડો ચાલો. બરાબર. નહીં એટલે એમાં કેવું થાય છે તાલીઓ પાડવાના, જે લોકો તાલીઓ નથી પાડતા એમને ડાઉટ છે પોતાના ઉપર કે ના હિમા ના શીમા બંને પગ ઘીમાં, એટલે બહુચરાજીથી લેવા આવશે એમ. જો તાલીઓ નહીં પાડીએ તો બહુચરાજીથી લેવા આવશે એ ડાઉટ છે. એટલે તાળીઓ પાડવાની એમ, ગભરાઈ નહીં જવાનું, કોઈ લેવા નહીં આવી બહુચરાજીથી. બરાબર. થેન્ક યુ. Thank you, Mansi, for your extraordinary speech. जो लड़ा था सिपाहियों की तरह, ऐसा भारत में कोई बादशाह न हुआ. रूह तो हो गई थी तन से जुदा, लेकिन हाथ तलवार से जुदा न हुआ. The celebration of the Republic Day was different from the past due to pandemic. Let us leave 2020 behind and strive to take India to the new heights in 2021. So I would request Gupta sir to express his views on this occasion. To give vote of thanks and conclude the program. परमादरणीय राष्ट्रध्वज हमारे भारत के सभी वीर सपूतों, हम यहाँ पर सबसे पहले थैंक कहना चाहेंगे विशाल सर को, जिनके कारण मैं यहाँ पर हूँ। इस प्रोग्राम के
जिनकी देखरेख में हुआ डॉक्टर खन्ना सर, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके कारण ये बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम हमको देखने को मिल रहा है। ऐसे तो हम बहुत कुछ स्पीच में देखे, स्पीच डॉक्टर खन्ना सर का यहाँ पर हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अंसारी सर का, डॉक्टर किरण जोशी का, राहुल गुप्ते, जील, जैनब, बीपीटी, दीप पटेल, मानसी पंड्या। लेकिन जो मेरे को यहाँ पर देखने को मिला, मैं शेयर करना चाहता हूँ कि 2-3 लोगों का आगे शायद पार्टी में अच्छा भविष्य हो सकता है। डॉक्टर अंसारी सर, आप कोई बीजेपी को छोड़कर दूसरी पार्टी आप एक ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि बीजेपी में शायद तब जब दूसरी पार्टी से आपको पता लगेगा कि हमारे पास 10-20 हजार 30 हजार वोट है, तो बीजेपी वाले भी एक अल्पसंख्यक मोर्चा है उसमें बुलाने की कोशिश करेंगे। एक स्पीच यहाँ पर बहुत बढ़िया किरण जोशी का रहा। किरण, ये मेरे को इसलिए इसको धन्यवाद देना चाहता हूँ, फ्यूचर में तुम्हारी भी कोई ना कोई पार्टी पक्की है। राहुल गुप्ते अच्छा स्पीच देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एक अच्छा भी हो सकते हैं और सोशल में भी अच्छा हो सकते हैं। फ्यूचर बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो जोशी का भाषण देने वाले, जिन्होंने सबके अंदर मैं समझता हूं कि एक वाइब्रेंट उसे बोलते हैं, जिससे हमारा सर्कुलेशन बढ़ जाए। दीप पटेल, जिन्होंने पाकिस्तान में रावलपिंडी में तिरंगा फहरा दिया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें ये लगता है कि शायद महिला मोर्चा में जगह मिल सकती है। मानसी पंड्या, ये एक कहीं न कहीं हमारे अंदर एक सीड होता है, अगर उसको मौका मिल जाए, अगर उसको सही जगह मिल जाए, सीड पैकेट के अंदर नहीं उग सकता है। सीड के लिए जमीन चाहिए और आप लोगों के अंदर वो सीड है। अगर सही जगह मिल गई तो निश्चित ही आप एक बहुत बड़े वृक्ष बन सकते हैं। आप इसलिए जो है एक आप लोगों का एक अंदर का जो योग्यता है वो सामने आती है। फ्यूचर में आप लोग सब अपने अपने फील्ड में लीडर बने। यहाँ पर जो एंकरिंग कर रहे थे, फैजल, सूरपाल, भूमिका, उपेक्षा, फातिमा, पीयूष, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल आज बनाया। कार्यक्रम में सभी कुछ होना चाहिए, तो इसके लिए डांस प्रोग्राम एक आया लेकिन बहुत अच्छा आया। अक्षिता एंड हीरा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जहां पर पहला गाना चालू हुआ था, डॉक्टर केयूर सोनी, डॉक्टर अंसारी सर की एक्टिंग के साथ गाना चालू हुआ था, बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन उनको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर केयूर सर को तो स्पेशल इसलिए भी धन्यवाद रहता है क्योंकि बिना उनके प्रोग्राम सफल नहीं होता है। फॉर गिविंग द टेक्निकल सपोर्ट, अपना नुकसान करके भी वो इस प्रोग्राम को सफल बनाते हैं। आज भी ऐसा ही कुछ दिखाई दिया। हमारे अंदर और भी नए सिंगर शैलजा, प्रतीक पाटिल का एक्टिंग के साथ डांस गाना गाना ये शायद बहुत अट्रैक्टिव रहता है और ज्यादा ही अट्रैक्टिव रहता है। थैंक यू फॉर दैट। हाँ, पूरा ऐसा लगता है कि माइक को तोड़ देगा, फोड़ देगा। और वहीं पर उपेक्षा, अक्षय पटेल, जिनके जो है सॉन्ग यहाँ पर हमको सुनने को मिले, थैंक यू वेरी मच। एक नारी शक्ति की जो पोएट्री लेकर के आए पवित्रा,
बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद मैं तो बोलता हूँ पवित्र वेस्ट बंगाल में इस समय चांस अच्छे हैं। थैंक यू वेरी मच। और अगर ममता बनर्जी के अगेंस्ट में जाना है बीजेपी की तरफ से तो अच्छा बोल सकते हो। थैंक यू फॉर द टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ जो यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जिनके सपोर्ट से ये कार्यक्रम सक्सेसफुल रहा है। और मैं पर्सनली बोलना चाहता हूँ कि हम अपने देश को जितना क्रिटिसाइज करना चाहते हैं कर सकते हैं, जितना हम इसको बढ़ाना चाहते हैं बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, लेकिन अगर दुनिया में जैसे कि जो है कि दुनिया में हमारा भारत कहीं दिखाई देता है तो मंगलयान अगर हमारा पहुंच सकता है तो दुनिया को दिखाई देता है। अगर भारत में जो वैक्सीन बना है, शायद वैक्सीन जिससे हम आज के समय में 1 साल से पीड़ित हैं, शायद खुल करके हम कहीं पर बात नहीं कर सकते हैं, खुल करके निकल नहीं सकते, कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत पाबंदी लगी है, वो वैक्सीन हमारे सामने है। और दूसरी जो वैक्सीन आई है वो इतनी अभी शॉर्ट है, शायद कल ही मैं न्यूज में पढ़ रहा था कि जो फाइजर वैक्सीन है उसके लिए कई कंट्रीज जिन्होंने ऑर्डर दिया था उनको वैक्सीन नहीं पहुंच पा रही है, उन लोगों ने उनके ऊपर पेनल्टी लगा दिया है। लेकिन हमारे इंडिया में जो वैक्सीन बना है पड़ोसी देशों को फ्री में जाने लगी है। तो ये जो है केवल हमारे लिए नहीं, हमारे लिए एक गौरव की बात है जो हमारे भारत में जो नरेंद्र मोदी सरकार, जो बीजेपी सरकार, जो केवल पार्टी की सरकार नहीं होती है, हमारे देश की सरकार होती है। लेकिन जब हम किसी को एक को हम टारगेट करते हैं तो हम टारगेट को निकालना भी जानते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, आप लोग इस प्रोग्राम में आए, थैंक यू वेरी मच।